is launching. I think I think it has come out very well, sound-wise and visuals also. So I think we are going to see some exciting stuff. But first thing, I'm honored that I got to work with children. I think it's like they say, na, children are equal to God. And I think these kids have been amazing and very naughty, very fun, non-stop energy. And I think we used to get tired, they never got tired. So it was a great honor. And the cast, I got lucky to work with very, very popular actors. Surbhiji's played Tuntun Mausi, then Makaranji has played Skandi's character, Navneet Kaur, she played Takshika's character, and Anupam sir plays Guru Shambhu's character. One thing I saw was that when, of course, our Raja Indra Varma is also here. So one thing what I've learned from Anupam sir is like when first time I had to direct him, I was very, very nervous. Obviously, so when I saw him act, what I realized was the difference between a good actor and a great actor. Like in the moment I walked in, he made me revise the script. He made me improvise my script, which he didn't have to, but he corrected whatever mistakes. I was a first-time director. He understood that, and he corrected me a few things, and he guided me rightly. And the shot taking was outstanding. I think one of the scenes in the film was where he had like, in what everybody thought it'll take 2 hours. I think there was done in 20 minutes, the shot. And Anupam sir is such an outstanding actor. It really honors sir to work with you. And all these kids also, one take artists, all of them. One take. So title track was the first track that we had done, Diggy Diggy Dum Dum. और राजीव जी से मैं मिला ही था तब, तो he was a little, कि करना चाहिए मेरे साथ म्यूजिक कि नहीं करना चाहिए. हमारी मुलाकात हुई ही थी, 8 महीने पुरानी बात है, और हमारे को एक कॉमन फ्रेंड ने मिलाया था, मतलब 5 मिनट के लिए at a theater. And then I told sir, I said, sir, don't let me do the music, let me pitch for it. And आप मुझे बताइए आपको कौन सा गाना चाहिए, आपका मेन गाना क्या है. तो टाइटल ट्रैक था, and I called Juneja ji, who's the lyricist. Juneja ji हैं यहाँ? He's also here. He came to the studio, Juneja ji, and wrote the lyrics. आइए Juneja ji, आइए. So आइए please, इतना खूबसूरत लिखा है. तो Juneja ji very gracefully came to the studio, and हमने बोला छोटा भीम तो आना ही है गाने का, लेकिन ऐसा कुछ लिखना है जो बहुत like ज़बान पे चढ़ जाए. Guys, he's done the lyrics for the entire album, phenomenal lyricist. And इन्होंने आके 10-15 मिनट, जुनेजा की खासियत ये है कि वो 5 मिनट लगाते हैं काम करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेते. मैंने उनको बोला कि जी ऐसा है, छोटी पिक्चर है, जो अपना छोटे बच्चों की पिक्चर है, छोटा भीम है, यू नो द कैरेक्टर, इट्स फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन, तो कुछ बढ़िया लिखिए. तो ही केम अप विद डिगी डिगी डम डम, डिगी डिगी डम डम. वहीं के वहीं 5 मिनट में मेलोडी बनी, और हमने वो उतना सेक्शन बना लिया, डिगी डिगी डम डम, डिगी डिगी डम डम, छोटा भीम भीम भीम, गिटार लेके. एंड देन दैट मच इज द सेक्शन दैट आई कॉल राजीव जी. आई सेड सर, दिस इज व्हाट वी हैव डन, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हम इसको और डेवलप करेंगे. एंड ही हर्ड इट, he said it's sounding fabulous, please go ahead. And that's how Diggy Diggy Dum Dum happened. And then I roped in Jyotika. I also got a lot of other child artists who have performed on this track and on the track that Shan has sung. One of them is my son Kian Sachar, who's also here. Come here. Come on, Kian. Come. So he has also sung a couple of lines in the film. This is his first ever film. It's a very proud moment for me also to have my own son sing. And it's been amazing experience overall. बच्चों के साथ, जब तक खुद के बच्चे नहीं होते ना, तब तक बच्चों से इतना प्यार नहीं होता. जब खुद के बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों से बहुत प्यार हो जाता है. तो ज्योतिका also came very gracefully and did these lines. So थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा. आप लोग मेरे साथ गाएंगे, अब तो इतनी बार सुन चुके हैं. हाँ, 1, 2, 3 and diggy diggy dum dum, 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 diggy diggy dum dum dum.
अगड़म बगड़म मस्त मलंगम धूम बचे मन डम 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 डिगी डिगी डम डम डिगी डिगी डम डम डिगी डिगी। सर थोड़ा सा प्लीज बताइए किसको इतना डिगी डिगी डम डम करवाया हुआ है सर ये? हेलो सर, शायरी लिखनी और बात होती है, रोज़ शायरी लिखते गाने लिखते रहते हैं, मगर ऑल ऑफ ए सडन एक बच्चों का प्रोजेक्ट आ जाए और आपको सोच में कोई शायरी नहीं दिखानी है, आपको कुछ ज़्यादा उर्दू कोई गहरी बात नहीं करनी, आपको वो कहना है जो एक बच्चा सोच सकता है, आपको उस लेवल तक अपने आप को लेके जाना है तो लिखना है ताकि आप कनेक्ट हो सको बच्चों से। तो ही सर के साथ बैठे, आई थिंक हमने हर गाना ऑन द स्पॉट बनाया, हमने कोई होमवर्क नहीं किया, बैठे सर आ जाओ, आगे बैठे 2 घंटे 3 घंटे बैठे, कुछ ना कुछ वर्कआउट हो गया। ये ऊपर डेफिनेटली बच्चों की फिल्म बहुत कम बनती हैं जबकि बहुत ज़्यादा बननी चाहिए। मुझे पिछली वाली बचपन की वही बम बम बोले गाना बना था, पता नहीं कितने साल पहले, वही मुझे गाने का मौका मिला था। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कोई बच्चों की फिल्म या बच्चों का कोई गाना भी बना हो। उसके बाद हम डिगी डिगी डम डम सुन रहे हैं अभी। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह इनोसेंस जो होती है ना एकदम, उनमें वो सारी पूरी कास्टिंग जितनी कमाल हुई है कि सब में जैसे हैं वैसे ही नज़र आ रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चे कुछ ज़्यादा अपना वो बच्चा दिखाने ज़्यादा क्यूट बनने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल बच्चों ने काम किया है। एंड ऑफ कोर्स साकिब के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम, इतना मतलब ऑलराउंडर कंपोज़र शायद बहुत कम है कि इनकी उम्र के हिसाब से अभी तो क्या 40 इंस्ट्रूमेंट सीख लिए होंगे? 41 हाँ। That's every year he learns a new instrument to actually it's holding him back, वरना अब तक 100-200 इंस्ट्रूमेंट्स और सीख लेते हैं। एंड सिंगर अभी अपने इतना अच्छा लाइव उन्होंने परफॉर्म किया और सारा इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन हर म्यूजिक की हर पहलू पर उनकी दखल है। सो is a very cutest boy. It's really very nice. तो इसका एक पेट अल्फाज है जो जिससे ये मुझे हमेशा बुलाता है, सुखी जी, जब भी फोन सुखी जी गाना करेंगे सुखी जी। अच्छा फिर मेरा भी जवाब, करो महाराज करो। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो एक दिल लगी होती है एक, क्योंकि अभी आज ही किसी न्यूज़पेपर में एक बड़ी अच्छी बात जो आई है, जो बात मेरे कहने से अच्छी नहीं है, वो पहले भी अच्छी थी। मैं एक जरिया बन गया कि एक कंटेस्टेंट बन के नहीं गा सकते, मलंग होना पड़ता बस, है ना। तो वो मैं जब गया तो मैंने ये फिल्म जो सॉन्ग है इसकी पिक्चराइजेशन देखी, मैंने कहा फटाफट से माइक लगा दे। उसके बाद मैं गाना सीखता रहा, समझता रहा शब्दों को, उनका उच्चारण भी, तो मज़ा ही आया, बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली मस्ट से थैंक कि राघव ने मुझे कंसीडर किया टू सिंग दिस फैबुलस सॉन्ग। ऑनर्स आ सर। और बच्चों की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा गुड लक है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिल्म भी देखने जा रहा हूँ, ना कि प्रीमियर, मैं ऑडियंस के साथ भी देखूंगा। और वो मुझे, मैं एम रियली वेरी मच एक्साइटेड। छोटे छोटे किड्स, छोटे छोटे किस तरह से नेचुरल, जैसे ईशान ने कहा कि नेचुरल फॉर्म में वो एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है। मुझे बहुत बेहद पसंद है कि मैं आज भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ, मुझे लाइट हार्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये फिल्म देखूंगा, ज़रूर देखूंगा, मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी। और अनुपम जी, मैं 2 म्यूजिक डायरेक्टर मिले इस गाने में मुझे, राघव और एक अनुपम जी। पूछ लो आप, अनुपम जी का एक्सप्रेशन देखता था, गाता था, एक्सप्रेशन देखता था, पिक्चराइजेशन में गाता था। तो मैंने इनको कहा, मैं क्या आज 2 म्यूजिक डायरेक्टरों ने मुझे घेर रखा है। सो ही इनहेंस दैट फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो। मैं जब अनुपम जी को देखता था, ये तो बड़े ही एक्सलेंट, ना कि एक बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर ही, बट बड़े मनमौजी हैं वो, बहुत लाइट हार्टेड एंड वेरी मच सिंसियर अबाउट हिज कंटेंट इन एवरी फिल्म। और राघव, थोड़ी मेरी तारीफ तो नहीं करनी तुझे? मैंने करनी, क्यों नहीं करनी। सुखी जी, द बिगेस्ट किड इन दिस एंटायर रूम है सुखी जी, बाय द वे। 100%, मतलब कि इनसे ज्यादा एनर्जेटिक बंदा अभी स्टूडियो आ जाते हैं ना, तो हम लोग सब मतलब यूर ऑन आवर टोज, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ऑर्डर इज गोइंग टू कम फ्रॉम वेयर। यहाँ माइक लगाओ, वहाँ पे मेरे को डिले चाहिए, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से सब कुछ कर दो। एंड देन द रिजल्ट्स व्हेन वी रिकॉर्डेड, आई वाज आफ्टर हिम, आई वाज लाइक सुखी जी मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूँ, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत फ़ोन करूँगा, आपने ये गाना करना है, आपकी आवाज़ में ये गाना, मतलब 4 चांद लग जाएंगे गाने में। एंड ही वाज वेरी 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 स्वीट, ही सेड ठीक है 100% करेंगे गाना। फिर हम लोगों का जब फाइनली जिस दिन स्टूडियो आए,
उस दिन उन्होंने देखा अनुपम साहब को परफॉर्म करते हुए, बिकॉज वी हैड द video, and as he was looking at him he was expressing and he added so much more to the song जो पहले नहीं था गाने में. वो आपका स्टार्टिंग वाला जो है पूरा का पूरा पंजाबी जो वाइब दी है, ये उन्होंने मतलब बैठे बैठे मैं बोला वाह भाई. और हमेशा होता है सुखी जी के साथ, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने जो गाना बनाया था वो गाना वैसा नहीं रहने वाला. Thank you very much. Now since he's there, he'll do. अनुपम सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज बताइए, वर्किंग विद दिस टीम, और वो अंदर का बच्चा कितनी बार जगा वो हमें पता है, वैसे तो दिखता ही रहता है आए दिन. इन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया था. मतलब इनकी एनर्जी से मैच करना बहुत मुश्किल था. पहले दिन तो मुझे लगा मैं थक गया इनके साथ, बिकॉज इनके सवालात, इनकी कोशिश, इनकी सादगी और इनकी स्पॉन्टेनिटी, उसको मैच करना बड़ा मुश्किल है. बट दे आर सच वंडरफुल चिल्ड्रन. इसके तो अभी बाल हैं, पहले तो मेरा और इसका हेयर स्टाइल सेम था, अभी इसके बाल आ गए हैं. सब ने बहुत अच्छा, इट्स वंडरफुल. एक बहुत फेमस डायरेक्टर ने कहा है हॉलीवुड के कि व्हेन चिल्ड्रन आर इन द फ्रेम डोंट एक्ट, बिकॉज नोबडी इज लुकिंग एट यू. And that's it, honesty, because you can't match the spontaneity of the children. But this was a crash course for me. This was a complete learning experience for me. It's very important to bring in the child in you, because वो जिंदा रखता है और वो यंग भी रखता है. तो मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत मुझे प्यार दिया इन लोगों ने, और हमने काफ़ी सारे मस्तियाँ भी की. मैंने इनके लिए कुछ खाना वाना भी मंगवाया था 1-2 बार. डोनट्स, French fries, donuts, burger, French fries, burger. डोनट्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज सब मंगाए थे. और इनको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है. इनको शान को नया गाना गाए तो याद नहीं होते वर्डिंग्स, तो मगर इन्होंने सब आपको वर्डिंग बता दिए. मेरे डायलॉग भी बता सकते हैं. It was a great experience. Thanks to Rajiv and Megha, and thanks to producers. I had a great time. We were shooting in रेगिस्तान में. हम उधर जोधपुर में शूटिंग कर रहे थे. It was very hot, but जो रिजल्ट है, आई थिंक इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो कलरफुल. मैंने आज कलरफुल कपड़े इसीलिए पहने कि वरना मुझे ब्लैक, ग्रे, वाइट पहनने को मिलता है. तो मुझे लगा कि आज मैं इस एनर्जी को मैच करूंगा. एंड मैंने जिंदगी में कभी रेड पैंट नहीं पहनी है. येलो सॉक्स सर, येलो सॉक्स. Yellow socks also, sir, we love येलो सॉक्स भी पहने हैं. बट आई Awesome. फेल्ट गुड एंड आई सेड आई एम इन अ कंफर्टेबल जोन. वंडरफुल. थैंक यू फॉर मेकिंग मी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच सर. राजीव सर, सर ने कुछ याद करने की, कुछ सीखने की बात की. इस फिल्म के साथ कौन सी चीज है जो हमेशा याद रह जाएगी और आपने सीखी? Sir, Anupam sir, again, thank you so much for your presence, and it means a lot to us. So, first things first, I think when we started making this film, हमारे लिए एक challenge थी. वो challenge first thing was how no one has made recently kids film, and how do we make this kids film not just at a level of Bollywood but also level of international. So our goal was not thinking about today but planning for that tomorrow. We need to make a film that will not only be story wise good but visually also it has to be stunning. So this was the first mission for the movie, which means we had to get high caliber actors. Absolutely. And of course, from Anupam sir to Makarand Deshpande ji to Navneet Kaur, Sanjay ji. Sanjay ji, can please, we forgot to call you. He's played Raja. Please come onto the stage. He's played Raja Indravarma, the king of Dolakpur, and he's done a fabulous job. So we had to make sure कि हमारे पास अच्छा actors हो. That was the first thing, and then obviously जितना visuals अच्छे उतना music चाहिए था. So we were able to get Raghav ji. Like, of course, when I met him first time, I was very confused. इतना सारा talent एक आदमी में, कुछ तो लफड़ा है. So I took my own time. So it started with one song, then it became 2 songs, 4 songs, then the background score, the entire film is handling. So and he's Dhamyan also की the आवाज most नहीं बनी है. important. The most important is the voice of Dhamyan. He is outstanding voice. Yeah, he's done it.
So अमेजिंग अमेजिंग राघव भाई, मतलब इतना टैलेंट एक साथ। ये राजीव जी निकलवा रहे हैं सब, मुझे तो पता भी नहीं था। बढ़िया है, बढ़िया है, ऐसी होना चाहिए सर, सबके साथ ऐसी डायरेक्टर मिलने चाहिए। हाँ, राघव एक दरमियान वाला एक डायलॉग बोल मैं दो। एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये मैंने आज गधा ये जो पहनी है, जो लगाई है, मेरा पहला रोल, जिंदगी का पहला रोल हनुमान अपना रामलीला में हनुमान की सेना में बंदर का था। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, और उसके बाद आज पहली बार मैंने ये गधा अपने कंधे पर लगाई। लिटरली अपना चाइल्डहुड और जी रहे हम लोग। मैं आज बड़ा भीम हूँ। आज सर भीम बन गए। अरे वाह, क्या बस ऐसे ही मेरे जीना आराम करते थे, मेरे को बोलने नहीं देते थे। बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ से माइक छीन लिया तुमने। राइट, सो मेघा मैम, क्विकली यू नो वी कम टू यू, प्रोड्यूसर के तौर पे नहीं बल्कि एज अ सिने लवर, व्हाट डू यू हैव टू से इफ यू हैव टू यू नो सम अप दिस एंटायर थिंग जो हमने यहाँ करा अभी? Like you can see, we all are very excited, very, very excited for the movie. A big thanks, and we're really honored to be on stage with Anupam sir, Sukhvinder Paji, Shan sir, everybody. I mean, it's been a great experience working with such big actors, इतने दिग्गज कलाकार, and ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, like they are like super छोटा पैकेट बड़ा धमाका, like I always say. They know what to say, when to say, super energy. You all have seen how we are promoting the movie, going to cities. All the kids, सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब आप उनके बीच में जाओ तो देखने को मिलता है कि वो सारे बच्चे सच में भीम को कितना प्यार करते हैं. Everybody has a different story to that connects with Bhim, Chutki, Kalia. You know, each and individual has a different connection. So we are so happy that we have made this movie, and we are really looking forward that audience हमको उतना ही प्यार देगी जितना आज तक छोटा भीम कार्टून को मिलता आया है. और बहुत दिल से बनाई हुई चीज है, उम्मीद कर रहे हैं कि दिलों तक पहुंचेगी और उन पे राज करेगी. आई एम श्योर थिएटर से सीधे दिलों सर, तक सर, 31 तारीख को। जी ये भीम की माँ है। पक्का यस देख लिया? रियली। Oh, thank you, बता दिया। मेगा जी, of course we know you playing that character, so thank you so much उस अवतार के लिए भी। अनुपम सर, हाँ जी। बच्चों के साथ काम करना हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपने बताया अभी कि कितना मजा आया आपको। कुछ बचपन की यादें अगर आप अपने मैं तो एक बचपन बड़ा की- पॉपुलर शो करता था, से ना समथिंग टू अनुपम अंकल। वो बहुत पॉपुलर शो था। उसमें मैंने एक छोटे से 3 साल के बच्चे से पूछा था, या 2 साल का था, मैंने कहा कैन यू काउंट? तो उसने कहा यस, 1 2 3 4 5। फिर मैंने कहा कैन यू गो हायर? कहती यस। उसने कुर्सी खींची, उस पर चढ़ी, कहती है 1 2 3 4 5। नो, आई थिंक इट्स बहुत कुछ इनसे मिला। और ये आज के युग के बच्चे हैं, आप इनसे वैसे नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्मों में बच्चों के साथ काम किया, तो ये वैसे बच्चे नहीं हैं जो बोलते हैं अंकेल अंकेल, मैंने को ऐसा नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रेट, दे आर वेरी मॉडर्न चिल्ड्रन, दे आर वेरी अवेयर ऑफ this thing, they are aware of their mobile phones, you can learn, actually you can sit down and learn from them so many things. I mean, I'm also interested in it. I don't go on a set as a person who knows what he is doing. I go on the set as a person who is seeking something from everybody. और इन दोनों में से कौन सा था जो ज़्यादा शरारती है? ये मैं तो थोड़ा कंफ्यूज। और ये मुझे लगता है पैदा ही हुआ था भीम का रोल करने के लिए, छोटा भीम का रोल करने। ही इज वेरी मैच्योर, वेरी वेरी काम, वेरी नाइस, शी इज वेरी नॉटी, एंड ये तो जो है चुप नहीं रहता, ये इसको चुप रहना नहीं आता है, अभी भी देख तो बोलता ही जा रहा है, इसको चुप रहना नहीं आता। सो देयर वाज सो मच spontaneity, and as Rajiv said, it's actually an international standard film. The special effects, the VFX are so good. So we'll request the audiences to watch this film with the children. माँ बाप को एक साथ फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज या तो बच्चों के लिए फिल्म होती है, या फिर माँ बाप के लिए होती है, या फिर वयस्कों के लिए होती है। बट आई थिंक दिस इज देयर चिल्ड्रन। इफ दे वांट टू मेक देयर चिल्ड्रन, इफ पेरेंट्स वांट टू मेक देयर चिल्ड्रन हैप्पी, दे बेटर वॉच दिस फिल्म विद देम। राजू और देविक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जी मैं कालिया भैया के साथ हूँ। ये तो चलता रहेगा। मेरे पास एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। हमको टुन्नी मौसी वाले वो लड्डू मिलेंगे क्या? वो तो मौसी से ही पूछना पड़ेगा ना। मौसी जी लड्डू है क्या? मौसी जी आ जाइए, कमल सुरभि जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एंड मैम कम, बैग लाइए। हेलो बैग में लड्डू है। सबको मिलेंगे अभी लड्डू। मुझे चाहिए
आई एम हियर फॉर दोस लड्डूज ज्योतिका, you definitely gonna. लोगों ने आपको, दर्शकों ने आपको बहुत कम डांस करते हुए देखा है, तो इसमें आपने डांस किया है बहुत समय बाद, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बुरा डांस करता हूँ, मैंने इसलिए आपने मुझे ज़्यादा डांस करते देखा नहीं है। मगर अभी जल्दी आप देखेंगे, मैंने कल राघव के साथ कुछ किया है उसके स्टूडियो में, जो इन्होंने सरप्राइज रखा। थैंक गॉड, मैं दिखाने वाला था इनको। मैं सर ने दिखाने बहुत वाला। अच्छा डांस किया है, झूठ बोल रहे हैं सर। क्या अच्छा डांस करता हूँ? हाँ। चलिए, अच्छा डांस करता हूँ, इनका सर्टिफिकेट मिल गया। नो, आई थिंक आई डांस विद द इमोशन, बट आई एम नॉट, आई विश आई वाज अ ग्रेट डांसर ऑल्सो, बट आई डांस विद द इमोशन। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुखी जी आपने मुझे फ़ोन किया। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और पर गाने से पहले या गाने के दौरान इनका फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि मैंने आपकी एक्टिंग देख के गाना गाया है। तो बड़ा रेयर होता है मैंने सिंगर लाइक यू, अमेजिंग सिंगर लाइक यू कॉल्स एंड टेल यू। तो आई थिंक इमोशन क्लियर हो जाए, इमोशन कन्वे हो जाए, तो डांस ही उसका होता है। मैं एक्टिंग का डांस करता हूँ। अनुपम जी, योर सेंटर। हाँ जी। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। हाँ जी। पहले आपसे सवाल है, फिर शान और सुखविंदर जी से। मेरा सवाल ये था सर, आपके 40 साल पूरे हुए इंडस्ट्री में, और ये कोइंसिडेंट है क्या उसका सेलिब्रेशन आप छोटा भीम के साथ कर रहे हैं? नहीं, डे बिफोर यस्टरडे मैंने 40 साल पूरे किए, बट तो ऐसा लगता है पलक झपकते गुजर के, असली काम तो अब शुरू किया है। इतने साल तो मेहनत कर रहा था, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ काम का। ये साल जो हैं वो, दीज आर जस्ट नंबर्स। आई फील दैट फॉर ए पर्सन, और बेस्ट चीज़ है कि हमारी एक्टिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है। आप 90 साल की उम्र में भी अच्छी काम कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो काम करे। बट थैंक यू टू छोटा भीम टीम फॉर सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स ऑफ माई, अब मैं इसको प्रिटेंड कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए ही रखा है। तो आई एम हैप्पी टू बी स्पेंडिंग दिस 40 years of celebration with this team. अनुपम जी, एक सेकंड, अनुपम जी ने अपना 40th ईयर मेरे साथ सेलिब्रेट किया है, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट बिकॉज वी मेट yesterday for the first time. I've of course been a huge fan. Yesterday was 25th. हाँ. Yeah, I've been a huge fan. बचपन से हम लोगों ने पिक्चर देखते देखते सभी लोग बड़े हुए हैं. I'm sure everybody here is exactly of the same sentiment. मेरे बचपन से. आप अपने बचपन से लगे हुए हैं, and we guys have been there, and yesterday I had the good fortune of having him at the studio. You know, एक चीज़ होती है, आप किसी को पर्दे पे देख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस, 1.5 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया, उसके अंदर उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने मेरे साथ शूट भी किया, उन्होंने गिटार भी पहनी, उन्होंने ऐसा कुछ, मुझे लगा नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सालों से जानता हूँ. एंड दैट इज़ वॉट इज़ ब्रिलियंट अबाउट अ पर्सन लाइक अनुपम सर, दैट आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं और उस आदमी को ऐसा लगे कि आप सालों से उनको जानते हैं. अब मेरी तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई, और आपको बहुत बहुत फंकी चीज़ देखने वाले हैं हमारी तरफ से. I think this celebration or this event is for Chota Bheem. Let's concentrate on Chota Bheem and ask questions only about Chota Bheem. मैं तो हूँ ही, और वो अगले 40 साल तक मुझे झेलना है आप लोगों को. But I'm very happy to see these children here. आप लोग कहाँ से आए हैं? बच्चों, भूख भी लग रही है इनको. पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं. सर, अब आपने जिक्र किया, मैं बता दूं आपको, I'll just come to you. Mrs. निदर्शना रमेश गोवानी जी हैं हमारे साथ, who is a philanthropist and of course owner of Kamla Mills. मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पे आइए. She is also the founder and trustee of Kamla अंकीबाई चमंडीराम गोवानी. हम करेंगे 31st को. Thank you. और कोशिश करेंगे कि जुहू पर ही करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पिक्चर दिखाएं. थैंक यू सो मच. That's so nice. Thank you so much. We good? Come on, the बच्चा पार्टी जल्दी से आ जाओ ऊपर.